Hey everyone, this is Advocate Papia. I welcome you all in my channel Decode the Law. And topic for today is Section 52 of the Transfer of Property Act. Section 52 of the Transfer of Property Act enumerates the provisions relating to doctrine of lis pendens. So doctrine of lis pendens क्या है? What is the object of this doctrine and what are the essential ingredients of Section 52? These are the points that I am going to discuss in this video. This is very important topic. You will get question in your judiciary exam as well as in your law examinations. So this is going to be a very important and informative video for you. Please watch this video till the end. Now let me tell you why you should subscribe to my channel. Because in my channel मैं ऐसे legal provisions को explain करती हूँ. अगर आप presently कोई law student हो, इन फ्यूचर जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन लेना चाहते हो तो आपका प्रिपरेशन एक साथ ही हो जाता है. बिकॉज लॉ में जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट जुडिशरी में कॉमन रहता है, लाइक आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एट्सेट्रा. सो ऐसे प्रिपरेशन क्यों नहीं लिया जाए, आपका प्रिपरेशन एक साथ ही हो जाए. एंड इन ऑर्डर टू एनालाइज द होल कंसेप्ट आई विल एक्सप्लेन दिस फ्रॉम द बेरा, because it is very important to understand the language that has been used in the Bear Act. So please watch this video till the end. Let's start with today's topic. So now let's understand what section 52 is all about. Section 52 को हम Bear Act से line by line पढ़ेंगे. ये बोल रहा है during the pendency of any court having authority within the limits of India excluding state of Jammu and Kashmir or established beyond such limit by central government of any suit or proceedings which is not collusive in which any right to immovable property is directly or specifically in question. मतलब जहाँ पर एक सूट पेंडिंग है एंड कोर्ट का अथॉरिटी है विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया बट एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मतलब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेशन नहीं होगा बिकॉज वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का एप्लीकेशन होता है. दैट्स वाई इस सेक्शन का एप्लीकेशन नहीं होगा. एंड जहाँ पर एक राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इज इन क्वेश्चन एंड दैट इज़ नॉट कल्यूसिव इन नेचर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सेक्शन अप्लाई होगा. And later part states that the property cannot be transferred otherwise dealt with by any other party to the suit or proceedings so as to affect the rights of any other party thereto under any decree or order which may be made therein except under the authority of the court and on such terms as it may impose. मतलब जहाँ पर कोई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इन क्वेश्चन एंड उसको लेकर कोर्ट में एक केस चल रहा है, ठीक है, मतलब वो लिटिगेशन पेंडिंग है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट अदरवाइज डेल्ट विथ बाय एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग्स एज टू इफेक्ट द राइट्स ऑफ एनी अदर पार्टी देयर टू. कोर्ट का अथॉरिटी होना पड़ेगा एंड कोर्ट जो टर्म्स मेंशन कर देगा अकॉर्डिंग टू दैट वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जाएगा. ओके, नाउ let's come to explanation appended to section 52. So explanation appended to section 52 बोल रहा है that for the purpose of this section the pendency of a suit or proceedings, मतलब जहाँ पर एक suit pending है, proceedings चल रहा है, shall be deemed to commence from the date of the presentation of the plaint or institution of the proceedings in a court of competent jurisdiction. मतलब जिस दिन वो सूट कोर्ट में फ़ाइल किया गया था और वो डेट जब उस केस को इंस्टीट्यूट किया गया था एंड उस कोर्ट का कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन रहना ही पड़ेगा. मतलब जहाँ पर वो केस चल रहा है उस कोर्ट का कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन रहना ही पड़ेगा. And to continue until the suit or proceedings has been disposed of by a final decree or order and complete satisfaction or discharge of such decree or order has been obtained. मतलब जहाँ पर सूट और प्रोसीडिंग्स डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है by passing an final order or decree has become unobtainable by reason of expiration of any period of limitation prescribed for the execution thereof by any law for the time being in force. मतलब जहाँ पर ऐसा कुछ final satisfaction और complete satisfaction regarding the discharge of such decree or order is obtained
बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब जो लॉ में ऐसा लिमिटेशन पीरियड बताया गया है उस लॉ को ही फॉलो किया जाएगा रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन देयर ऑफ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीज पेंडेंस। सो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस है जो बताया गया है सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ओके, इसका जो लीज पेंडेंस टर्म है इसका मतलब क्या है? लीज मीन्स लिटिगेशन और एन एक्शन और अ सूट। पेंडेंस मीन्स पेंडिंग और कंटिन्यूइंग, मतलब जहाँ पर एक केस पेंडिंग है और इन अदर वर्ड्स वो सूट कंटिन्यूइंग है, मतलब वो केस चल रहा है। सो लीज पेंडेंस मतलब क्या हुआ? पेंडिंग सूट और एन एक्शन। सो लीज पेंडेंस इसका पूरा मीनिंग है पेंडिंग सूट और एन एक्शन। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द प्रिंसिपल और मैक्सिम दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, दैट इज पेंडेंटी लाइट निहाल इनोवितुर। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आई हैव रिटन हियर द लैटिन टर्म दैट पेंडिंग अ लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। मतलब जहाँ पर एक लिटिगेशन पेंडिंग है वहाँ पर कोई न्यू थिंग इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। नाउ लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को समझते हैं दैट ए सेज दैट ही इज़ द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी एक्स। मतलब सपोज ए एक पर्सन है, ये बोल रहा है ये जो प्रॉपर्टी है एक्स, मतलब सपोज एक्स एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का ओनर है। बी ऑल्सो क्लेम्स टू बी द ओनर ऑफ दैट सेम प्रॉपर्टी। मतलब बी भी बोल रहा है दैट आई एम ऑल्सो द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक्स। एंड ए क्या करता है? ए इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक सूट फाइल कर देता है, ओके, रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। नाउ व्हेन द मैटर इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, ए कैनॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी बाय सेल और गिफ्ट। मतलब जब तक वो केस पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट, ए वो प्रॉपर्टी को कोई सेल और गिफ्ट नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है वो ट्रांसफ़र वैलिड नहीं रहेगा। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड what is the essential elements. Section 52 of the Transfer of Property Act mainly states about 6 essential elements. So what are these? Number 1, pendency of a suit or proceedings. मतलब कहाँ पर सेक्शन 52 अप्लाई होगा? जहाँ पर एक सूट पेंडिंग है। सो इन ऑर्डर टू अप्लाई सेक्शन 52, सूट और प्रोसीडिंग्स को पेंडिंग होना पड़ेगा। नाउ अनदर एसेंशियल इज दैट कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब क्या? कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब सपोज एक्स ए प्रॉपर्टी है, ये दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में आता है। ओके, सपोज आप जाके एक केस फाइल की हो मुंबई में, क्या यहाँ पर मुंबई का कोई जुरिस्डिक्शन बनता है टू पास एनी काइंड ऑफ डिक्री रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी एक्स? द आंसर इज नो, राइट, बिकॉज यहाँ पर इस कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता है। नाउ अनदर पॉइंट इज दैट नॉट कल्यूसिव। मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मतलब जो प्रॉपर्टी को लेके एक सूट और प्रोसीडिंग्स चल रहा है, वो कल्यूसिव नहीं होना चाहिए। सो कल्यूसिव मतलब क्या? सपोज फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये जो पार्टी है, ठीक है, ए एंड बी जॉइंटली मतलब राजी होता है दैट ए विल फाइल अ सूट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी एक्स and B will not take any kind of sincere action regarding that particular property. Okay, and suppose that during the pendency of the suit, A क्या करता है? ये वो प्रॉपर्टी को सेल कर देता है D को, ठीक है। जब वो सूट चल रहा था, A D को प्रॉपर्टी सेल कर देता है एंड A हैज़ रिसीव्ड मनी फ्रॉम D। अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है देन दिस ट्रांसफ़र विल बी टर्म्ड एज कल्यूसिव ट्रांसफ़र। ओके, सो ये कल्यूसिव ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ लेट्स कम टू अनदर एसेंशियल, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी मस्ट बी इन क्वेश्चन। मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके केस फाइल हुआ है, उसको लेके एक सीरियस कॉज ऑफ एक्शन रहना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ विच कोर्ट में एक केस फाइल हो सकता है। ओके, नाउ अनदर थिंग इज दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। So, in order to apply section 52, there should be a transfer of property, right? Next essential is that transfer must affect the other party. मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा है उस ट्रांसफ़र से कोई जो अदर पार्टी है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। वो ट्रांसफ़र करने से कोई थर्ड पार्टी इफ़ेक्ट हो रहा है
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेक्शन 52 को अप्लाई किया जा सकता है. सो बेसिकली द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस इज दैट to protect the parties to the litigation against alienation by their opponents pending the suit. मतलब जहाँ पर कोई एक इंसान को एक ट्रांसफ़र अफेक्ट कर रहा है, at that point of time, in order to protect that person against alienation by their opponents, section 52 का application होगा. Okay? I hope it has been clear to you. Now let's understand a case. This case is very famous, that is Bellamy versus Savini. इट वॉज हेल्ड इन दैट केस दैट जहाँ पर एक केस इंस्टीट्यूट हुआ है एंड वो पेंडिंग है अभी तक, मतलब प्रोसीडिंग्स चल रहा है. अगर किसी को वो प्रॉपर्टी सक्सेसफुली टर्मिनेट करने के लिए मतलब एबल किया जाए, देन इट विल अफेक्ट द राइट ऑफ द थर्ड पार्टी. एंड इफ़ द एलियनेशन पेंडेंट लाइट वेर परमिटेड टू प्रिवेल, मतलब अगर परमिट किया जाए कोई इंसान को एलियनेशन करने के लिए, द प्लेंटिफ वुड बी लायबल इन एवरी केस टू बी डिफीटेड बाय द डिफेंडेंट्स एलियनेशन. सो अगर ऐसा परमिशन दिया जाए, देन प्लेंटिफ विल बी लायबल फॉर एवरी केस एंड दैट विल डिफीटेड बाय द डिफेंडेंट्स एलियनेशन बिफोर द जजमेंट or decree, and that would driven to commence his proceedings to de novo. मतलब de novo proceedings मतलब एक new proceedings फाइल करने पर मजबूर कर देगा. Subject to again defeated by the same course of proceedings, मतलब वही सेम केस को एक और बार इंस्टीट्यूट किया जाएगा एंड उससे क्या होगा, कोर्ट का जो वैल्यूएबल टाइम है वो भी मतलब पूरा वेस्ट हो जाएगा एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स वो हो जाएगा. एंड उससे क्या होगा, इट विल लीड टू अननेसेसरी डिले एंड हैरेसमेंट टू द पार्टीज. नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल. मतलब जहाँ पर एक सूट पेंडिंग है कोर्ट में एंड आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली टर्मिनेट. नंबर वन इज दैट विद द कंसेंट ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट ट्रांसफर टेक्स प्लेस. मतलब जहाँ पर कोर्ट का परमिशन लेके ट्रांसफ़र किया जा रहा है एंड वेयर द ट्रांसफ़र रिलेट्स टू मनी डिस्प्यूट, जहाँ पर मतलब मनी को लेके कोई डिस्प्यूट है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर द ट्रांसफ़र इज़ फॉर रेवेन्यू सेल्स. मतलब जहाँ पर रेवेन्यू सेल रिलेटेड कोई ट्रांसफ़र है वहाँ पर किया जा सकता है इवन ड्यूरिंग द पेंडिंग लिटिगेशन और सूट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सर्टेन एडिशनल पॉइंट्स. नंबर वन इज़ दैट लीज पेंडेंस एंड रेस जुडिकेटा. मतलब लीज पेंडेंस के ऊपर क्या रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा? द आंसर इज येस. जहाँ पर फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस हो गया है बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, वंस द फाइनल जजमेंट इज मेड, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस के ऊपर रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा. ओके. अनदर पॉइंट इज दैट लीज पेंडेंस बिटवीन को डिफेंडेंट. मतलब को डिफेंडेंट जो होता है, मतलब सपोज एक केस में ए एंड बी जॉइंटली एक सूट फाइल किया है, ठीक है, एंड उसके ऑपोजिट पार्टी है सी एंड डी. सो सी एंड डी are the co-defendant, A and B are co-plaintiffs. Okay, क्या लीज पेंडेंस अप्लाई होगा co-defendants के ऊपर? The rule of लीज पेंडेंस does not apply to co-defendants. So ये clearly बोल रहा है that जो rule of लीज पेंडेंस है वो co-defendants के ऊपर अप्लाई नहीं होता है. Okay? So now let me tell you what are the points that you have to incorporate in your answer. अगर ये question जुडिशरी में आता है so you have to start with an introduction. सो इंट्रोडक्शन में लिखना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजन, इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है. ओके. लेटर ऑन व्हाट इज़ द प्रोविजन अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दैट इज सेक्शन 52, एंड देन यू हैव टू ब्रेक द सेक्शन लाइक व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस सेक्शन, एंड देन यू हैव टू पुट वन और टू इलस्ट्रेशन, वन केस लॉ, एंड एट द एंड यू हैव टू वाइंड अप योर आंसर बाय गिविंग अ कंक्लूजन. सो कंक्लूजन में पूरा सेक्शन का जिस्ट बताना है. दिस इज़ द फॉर्मेट. ओके. नाउ लॉ स्टूडेंट्स कैसे इस आंसर को फ्रेम करेंगे? लॉ स्टूडेंट्स को सेम ही ऐसे लिखना है व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, इस कंसेप्ट का क्या कहना है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजन, देन यू हैव टू राइट द सेक्शन, दैट इज सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. Then you have to mention what are the essential elements of this section. Then you have to explain those points, and later on you have to incorporate 2 or 3 illustrations, one case law, and wind up your answer by giving a conclusion.
So these are the points that you have to mention while writing answer in the examination. I hope आपका ये concept पूरा clear हो चुका है. What are the things that you need to incorporate in your answer? So that's all in this video. I will see you on the other side. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning new things. Thank you so much for watching this video.